Assalamualaikum everyone. This is your host Hadia Sajjad and you're watching Humans of Capital, powered by FM 97.6 Voice of Capital. Today I have a really special co-host with me. He's also a friend of mine, and today we're going to talk about mental health for a student. What mental health is really about. So please welcome Arjit Tarab. Assalamu alaikum. My name is Arjit Tarab. I'm from Management Sciences Department. उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे. Thank you so much, Hadia, for the introduction. Definitely, we're actually very good friends, and Kafi, we're also main host of our program as well. And I'm very thankful for you to invite me on your show as a guest, as your co-host. And काफी important topic आज हम discuss करने वाले हैं, which is mental health. I've done a show on that as well, but today we'll talk about it in a perspective as friends who know each other, as people who can actually relate to each other. So I think this is going to be a very good session, and I'm looking forward to it. मी टू एक्चुअली क्योंकि हमारी इन जनरल हम इस तरह से ना भी हो एक प्राइवेट स्पेस में जब हम अपने आप में होते हैं एक दूसरे के साथ तो हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं और काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाती है तो it's going to be a really good session, yes, and thank you for coming on to the show as a co-host. It's going to be really good. You're doing really good on your own show, that is Capitals Insight. So let's welcome the guest for today. वो भी हमारी एक दोस्त हैं, alumni हैं, student रह चुकी हैं of MBA at CUST, and she's been a part of CMC, the Capital Media Club, और बहुत सारे events manage किए हैं. She was the management head of CMC. So she's actually really great with it. So now she's starting another journey in her life. So it's going to be really good to talk to her. So please welcome Noor Suhail. Assalamu alaikum Noor. Walaikum वालेकुम assalam. अस्सलाम. क्या हाल है? बिल्कुल Alhamdulillah. ठीक. अच्छा. Before we go into this question, I am so happy to see CMC doing और माशाल्लाह तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो. जब मैं थी CMC में तो ये सब कुछ प्लानिंग फेज में था और अब माशाल्लाह ये एग्जीक्यूट हो चुका है तो आई एम वेरी हैप्पी और विजन चाहिए होता है कुछ काम करने के लिए वो हमारे पेटेंट के पास है सर उस्मान फील की और माशाल्लाह ही हैज अ ग्रेट टीम and I'm super proud of you guys. Mashallah. May CMC shine forever. Inshallah. Ameen. आमीन आमीन. थैंक यू सो मच. वाकई में एक विजन चाहिए होता है और उस विजन को उन्होंने ही जो है वो आगे लेके आए हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया टू express ourselves and express our own thoughts and ideas. So moving on to the discussion, mental health के बारे में बात हो रही थी. बात होनी है. Mental health, why do we use this term to indicate any sort of conditions? हालांकि mental health तो एक positive connotation में जाता है कि the mind is healthy. तो इस बारे में अगर डिस्कशन हम करते हैं तो देयर आर सम स्टैटिस्टिक्स के लाइफ एज अ स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट होती है और रिसर्च हैज इट कि हम जब प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है वी आर डूइंग गुड विद आवर ग्रेड्स एज वेल एज आवर सोशल लाइफ इन द यूनिवर्सिटी तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है बहुत पॉजिटिव हो जाती है बट देन अगर फिर हम मतलब अगर लाइफ एज अ स्टूडेंट के बारे में बात करें तो बहुत से ऐसे हर्डल्स आते हैं अगर हमने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं तो वो हमारे माइंड पे प्रेशर डालता है हमारी हेल्थ पे प्रेशर डालता है एंड इन रिटर्न it there's a decline in our mental health. Sorry. Okay. Hmm. Acha. So if I talk about my journey,
in university. So my journey has been like a roller coaster ride, and you guys know about it. ठीक है, I wouldn't go in depth. surface level पे रह के बात करेंगे. अगर मैं बात करती हूँ academically, तो I was a very bad student in accounting and finance. तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती थी, ना मुझे भी समझ आती है इनकी. और मेरी क्लास में सिर्फ मैं और मेरा एक फ्रेंड है सलमान, we were only two जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था अकाउंटिंग और फाइनेंस का. तो बेसिकली ना हम लोग इन सब्जेक्ट्स को ना बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे होते थे कि ठीक है हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, अभी टाइम नहीं है ये वो. इससे क्या होता है, इससे ग्रीफ क्रिएट हो रहा होता है. ठीक है, आप एक नॉन सिचुएशन में फंस जाते हो. जब ग्रीफ क्रिएट होता है ना, तो इसके भी 5 स्टेजेस हैं. ठीक है, ग्रीफ हैज 5 स्टेजेस. जिसमें पहला स्टेज है डिनाइल. अब मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी इसको. ठीक है, आप डिनाइल में चले जाते हो, जबकि रियलिटी ये है कि आप अभी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो. राइट, आप सेमेस्टर आपका एंड हो रहा है. ठीक है, एंड आप एग्जाम्स और आपने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है उस बारे में, तो इससे आप मूव ऑन करते हो टू सेकंड स्टेज, दैट इज एंगर. ठीक है, यू गेट एंग्री बिकॉज आपने पूरा सेमेस्टर में किताबें नहीं खोली हैं, नोट्स नहीं खोले हैं, स्लाइड्स नहीं खोली हैं, जो स्लाइड आप शेयरिंग बैक करती हो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें से. ठीक है, इसकी वजह से फिर आप मूव ऑन कर जाते हो टू द थर्ड स्टेज, दैट इज बार्गेनिंग. अब इसमें क्या करते हो आप, यू नो इफ यू हैव 10 चैप्टर्स कमिंग, तो आप तो ठीक है यार, आई प्रिपेयर 6 और 8 चैप्टर्स, बाकी चैप्टर्स अल्लाह ताला के हवाले, और आप दुआ कर रहे हो तो अल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम मेहनत कर लूंगी, मैं पढ़ लूंगी, प्लीज मुझे पास करा दे इसके अंदर है ये वो. इसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन हिट्स यू, व्हिच इज द फोर्थ स्टेज, जिसमें यू नो यू एक्सेप्ट द रियलिटी सेट्स इन. और उसमें फिर आपको फील होता है कि ठीक है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने किताब नहीं खोली अपने, कुछ भी नहीं किया, बट अगर अभी मैंने नहीं पढ़ा तो आई विल फेल. मुझे क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, ये पूरा कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, एंड आई विल बी बैक टू स्क्वायर वन. मतलब वही बात कि वही जिस चीज से आप अनॉय हो रहे थे, आप वापस उसी स्टेज पे जा रहे होगे. तो फिर आप आते हो फाइनल स्टेज, दैट इज एक्सेप्टेंस. ठीक है, कि आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने नहीं पढ़ा, बट अब टाइम है कि मैं पढ़ूं और मैं कोर्स को पास कर लूं. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ आ जाती है. आजकल यू गाइस वुड एग्री कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है. स्टूडेंट्स जिनके 95% मार्क्स भी होंगे, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है मेडिकल में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है. और यहाँ मैं बात हेल्दी कंपटीशन की नहीं कर रही, जो चल रहा है आजकल उसकी बात करें. ठीक है, तो कंपटीशन से प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स आ जाती है. ठीक है, जिसमें लेग पुलिंग कर रहे होते हैं आपकी. तो अब स्टूडेंट्स डोंट ओनली हैव टू डील विद एकेडमिक्स, बल्कि अब जो बाकी उनके साथ एक पॉलिटिक्स चल रही होती है उसके साथ भी डील करना पड़ रहा होता है लोगों को. तो मेरे लिए ना सिर्फ 2 एडवाइसेस हैं जिसके स्टूडेंट्स अभी आजकल एनरोल्ड है उनको, कि एक तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया ना, तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया. और टाइम मैनेज करने के लिए यू नो यू कैन प्लान, राइट करो, लिखो, जर्नल बनाओ, जो करना चाहते हो करो प्लान करने के लिए. ठीक है, ताकि यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट आई थिंक वो क्रूशियल चीज है. अगर आपने वो मैनेज कर लिया तो देन यू कैन मैनेज एनीथिंग. Well said. And Noor, वैसे आप क्या कहती हैं? You entered the university, you did your degree, you spent around, if I'm not wrong, 3.5 years in the university. ऐसे ही है? बिल्कुल. And after spending so much time and you know studying different subjects and meeting with different people, क्या एक चीज, एक ख्वाहिश आपके अंदर थी या अभी भी है कि कुछ चीज डिफरेंट होती, कोई चीज मुख्तलिफ होती, कोई ऐसी चीज जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, उसकी जगह कुछ और होता? What is it that you could have done different that now you wish to make different? I was more kinder to myself. You know, it is important to set boundaries. और जनरल बात करूंगी कि you know we should not feel guilty about moving on. ठीक है, you know आप यूनिवर्सिटी में आते हो, you make friends and फिर भी आपकी चीजें नहीं बन पाती हैं, you know, but you still linger on. I think you should not. You should move on without feeling guilty about it. ठीक है, then दूसरी चीज है कि you should not feel guilty about for choosing yourself. You should prioritize yourself. We usually don't do that. I don't. Yeah? You used to. And then you know we should accept compliments. अगर कोई आपकी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, तो वो किसी वजह से कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, ना कि आप बोलो कि नहीं मुझे मेरे में चीज नहीं है या नहीं. नो, डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स.
और एक और जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक विच वी ऑल शुड लर्न दैट इज टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी. If you don't feel like doing anything, you should not do it, and you can say no without feeling guilty. और एक बड़ी अच्छी saying है ना कि kindness costs nothing. I disagree. ठीक है. You guys can, you know, आपका अपना opinion हो सकता है. I disagree because it does cost you. It costs you your mental peace. तो it is very important कि आप देखो कि आपने वो energy अपनी वो मेंटल पीस किन लोगों में किन सिचुएशंस में इन्वेस्ट करनी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट. तो आप जो है ना इम्पोर्टेंट है कि कैटेगराइज करो कि ठीक है ये सिचुएशन कहाँ आती है और फिर मेरी मेंटल पीस कहाँ आती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो यस अगर मैं होती तो मैं इन चीज़ों पर लाजमी काम करती. लेकिन ये मैं आप लोगों को कहती हूँ क्योंकि आप लोग अभी भी यूनिवर्सिटी में हो तो वर्क ऑन इट. बिल्कुल ठीक कहा कि वाकई में काइंडनेस डज कॉस्ट यू अ लॉट एंड यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि आप अपनी काइंडनेस कहाँ पे लगा रहे हो, किन लोगों पे लगा रहे हो. सो दैट्स रियली वेल सेड. बट टॉकिंग मोर अबाउट स्टडीज़ के लिहाज से व्हाट इज़ इट दैट यू थिंक कि हमें क्या करना चाहिए कि उस चीज़ को बैलेंस कर सकें so that it doesn't affect our mental health. अच्छा पहले तो बात ये है ना कि अगर हम डिफाइन करें कि मेंटल हेल्थ जो है वो है क्या. ठीक है. तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन पोटेंशियल कि किस तरह से वो अपने स्ट्रेस को कोप अप कर सकता है. ठीक है. पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जो है ना उसमें यह है कि उसमें एक इंसान एक इंडिविजुअल ऑप्टिमाइज तरीके से चीज़ों को ख़त्म कर सकता है. ठीक है. मसला तब आता है जब स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तब आपने उसे कैसे कोप अप करना है. तो उसके लिए कुछ वेज हैं. ठीक है. जो मेरे नज़दीक मेरे ख्याल से लोग कर सकते हैं. दैट इज कनेक्ट टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, टू योर नेबर्स. उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करें, कनेक्शंस बिल्ड करें. देन उसके बाद कीप लर्निंग. ठीक है. जिंदगी बहुत छोटी है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं सीखने के लिए. तो यू नो यू कैन ऑलवेज लर्न अ न्यू स्किल, लर्न टू यू नो प्ले अ न्यू इंस्ट्रूमेंट और समथिंग. यू नो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. ठीक है. देन बी एक्टिव. मतलब कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं मेंटल वेलनेस के लिए. उसमें से ये कि आप अगर एक्टिव हैं मतलब कुछ टाइम अपने आप को ऑफ स्क्रीन भी दें. बाहर जाएं, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉग, डू व्हाटएवर यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट फिजिकली. राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन गिव give something to your friend, to a stranger. Say thank you more often. Smile often. You know it is very important कि आप smile करो and it is very very rewarding and it gives you back. एंड उसके बाद जो है ना टेक नोटिस मतलब बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस, व्हाट यू आर फीलिंग. इसकी बात ये कि अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना उन पे रिफ्लेक्ट करें और उनसे सीखें. बिकॉज मेरे ख्याल से यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. वैसे हम जो मर्जी बोल रहे हैं ठीक है समझ आ जाता है बट जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो ना यू ग्रो फ्रॉम इट. और ज़रूरी है कि उनसे आप पॉजिटिव लेके निकलो. ठीक है. जैसे वो कहते हैं ना कि हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, ये वेव्स जा रही होती हैं. लाइफ इज लाइक दैट. लाइफ जो है ना इट इज नॉट इजी. इट हैज अप्स एंड डाउन्स. दैट इज व्हाई इट इज लाइफ और दैट मीन्स दैट यू आर अ लाइफ. ठीक है. तो अगर अपनी मेंटल वेल बींग पे यूं काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपकी स्टडीज पे भी आप उतना ही फोकस कर सकते हो. पहले इम्पोर्टेंट है कि अपने मेंटल हेल्थ पे काम करो. अगर वो आपका ठीक जा रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से स्टडीज क्या हालिया आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग. बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ से ठीक हो पहले. You're absolutely right. आप जब अपने आप के अंदर बिलीव करते हो तो उस क्लीशे थिंग्स जो इन जनरल क्लीशे कहा जाता है कि दैट्स अ क्लीशे saying, they are cliche for a reason, they are common for a reason कि it's true, it applies everywhere and upon everyone. तो वाकई में हमें अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए. बट आई पर्सनली थिंक कि हमें एक जगह बैठ के ना सोचना चाहिए
कि what am I doing wrong? If there's something that is not going right in my life, studies की बात कर ली जाए अगर, वैसे तो मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर्स और ये सारी डिस्कशन जो है बहुत डाइवर्स है. It can branch out to anywhere. But today we're talking about mental health as a student, mental disorders and how to cope them. तो हमें personally, क्योंकि we're students, we're learning, ठीक है? There's only going to be a number of very small people, or very few people who will lead you, who will guide you. So it's on you कि आप अपने बैठें alone with yourself and think about what you're doing wrong and what you have to do right. So और वो जो बात की थी ना कैसे thank you, open a door for someone or do something kind, तो वो actual kindness वो है, because then उससे आपको वाकई में peace मिलता है, क्योंकि I did something, I created a ripple effect. तो पूरा फिर चलता रहता है. So yes, And इसके बाद Noor, I have a question that is actually I think we should focus more on our self satisfaction, but then it comes on the cost of our education, right? So do you think that we should focus more on self satisfaction when considering education as an important medium for worldly gains? Repeat your question. Do you think that we should focus more on self satisfaction when considering that education is important for worldly gains, materialistic gains, or you can say in our society, as we say, well settled, basically? Achha. It is very, very important to look out for your satisfaction, right? Satisfaction को हम define नहीं कर सकते, ठीक है? जो हर एक लिए different है. जैसे आपने बात की है कि worldly gains की, ठीक है? कुछ लोगों की satisfaction क्या होगी? Worldly gains. कुछ लोगों के लिए क्या होगी? अपनी mental peace, right? तो आपने decide करना है कि आपको satisfaction नजर कहाँ आती है? वर्डली गेन्स में या अपनी मेंटल पीस के अंदर. तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड कहाँ देखता है. इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से और यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट, मेरे लिए मेरी मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी वर्डली गेन. यस. एंड इससे फिर अगला सवाल आता है कि वैसे आई एम इन द ओपिनियन दैट कोई दूसरा आपका, हर कोई आपका हामी और नासिर नहीं होता. नो वन इज गोइंग टू एक्चुअली हेयर आउट फॉर यू अनलेस यू आर वेरी क्लोज. बट it then the question arises, what is the effect if you keep your hurt inside of you? You can say you can't breathe, you can't think, you're in a blockade and you're in a very deep state and you don't talk about it, right? हम हमारे हमारी यूनिवर्सिटी के लिए दूसरा चेहरा होता है. It's another mask. It's not the mask. It's underneath it's a real self. लेकिन ऊपर तो हमने मास्क पहना होता है, राइट? हर किसी ने पहना होता है. तो what happens if we keep that mask on and we don't vent out? And क्या उस पे असर है, especially to people who actually care for us, ठीक है? Finding such people is hard, and even then if you don't utilize that, so what is the effect? अच्छा, I will second you on that. और मैं यही कहने वाली तुम्हारे क्वेश्चन के बाद कि पहले तो ऐसे लोग ढूंढना जो आपकी बात आपको समझाने के लिए कह रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वरना लोग आपसे आके बातें सुन रहे होते हैं गॉसिप करने के लिए. काफी कम लोग हैं, देयर आर वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स जो आपकी स्टोरी सुनेंगे टू एडवाइस यू. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन फ्यू इंडिविजुअल्स को पहले ढूंढें. लेकिन इसमें मेरा एक और पॉइंट है, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, रीच आउट टू पीपल, रीच आउट टू योर पीपल, बट रिमेंबर वन थिंग कि जिसको आप रीच आउट कर रहे हो ना, he or she might also be going through something. मतलब हमारे यहाँ 1 in 4 people have mental illness, ठीक है? तो जिसको आप रीच आउट कर रहे हो और कितनी दफा रीच आउट कर रहे हो, ये हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रीचिंग आउट टू हादिया, आई हैव रीच्ड आउट टू हर 3 to 4 times, let's say. She is also going through something. अब मैं अगर बार बार इसके पास जाके अपनी स्टोरी सुनाऊंगी
इवेंचुअली वो भी थक जाएगी सुन के, और मैं बोलूंगी अच्छा यार अब तो वो सुन नहीं रही है, तो आई विल इवेंचुअली लूज अ फ्रेंड। ठीक है, तो वी नीड टू डिसाइड कि हमने कितनी बात कितनी दफा किसी से शेयर करनी है। और मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर हमारा बाजू टूटता है तो वी डोंट गो टू अ फ्रेंड, वी गो टू अ डॉक्टर। डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो रही है तो मतलब केमिकल इम्बेलेंस हो रहा है आपकी ब्रेन में, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। आपके फ्रेंड्स जो हैं दे कैन हेल्प यू आउट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच देम, यू नो, मतलब वो आपको समझ सकते हैं, लाइक वी डू, वी यूजुअली रीच आउट टू ईच अदर एंड वी टॉक। ठीक है, विच इज वेरी ग्रेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी शुड नो कि कितनी लिमिट है, हमने कहाँ पे अब स्टॉप करना है, अपने फ्रेंड्स को भी तंग करना है, बिकॉज वो भी किसी चीज से गुजर रहे होंगे। तो रात मेरे ख्याल से आजकल हर कोई किसी न किसी चीज से गुजर रहा है। किसी के पास भी कोई प्रॉपर मेंटल पीस नहीं है, everyone is suffering in their own way। तो हमें अपना भी और अगलों की भी वेलबींग का ख्याल रखना है ना। अगर हम सिर्फ अपना ही वेलबींग का सोचते रहे, वो मैंने बोला है कि प्रायोरिटाइज करें अपने आप को, बट अगलों को भी इतना मौका दें कि लिवरेज दें कि वो भी अपना ख्याल रख सकें, बजाय कि हम उनको हम लोग सुनाते नहीं अपने ही मसले। तो ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे हमने आके स्टॉप करनी है अपनी बातें और कहाँ कितना बताना है। दैट इज व्हाट आई थिंक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते रहते हैं टू अ सर्टेन समवन हु इज़ लिसनिंग टू अस, लेकिन इवेंचुअली आपको उनके रवैये से या फिर वैसे ही नज़र आ जाता है, बिकॉज़ दे आर डन विद इट, दे आर लाइक मूव ऑन ब्रो। बट इट गोज़ बोथ वेज़। उनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें भी ख्याल होना चाहिए कि यार depression is never ideal. It can never be something that someone can live with. मतलब कभी ना कभी we have to treat ourselves, मतलब उस चीज़ को करना पड़ता है। बट अगर मैं ये पूछना चाहूँगी कि what is the role of our teachers and our administration university की in general? और मतलब क्या इम्पोर्टेंस है कि टीचर्स आपको अंडरस्टैंड करें एज मतलब while they're in the class teaching you, they should care about your mental health and not bully you or anything। और दूसरा ये कि जो मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि you know better हो सके for students through the university and the faculty। अच्छा, मेरे ख्याल से हादिया, यूनिवर्सिटी जो है ना वो बहुत लेट चीज़ है इसको स्टार्ट करने के लिए। ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए स्कूल से नहीं तो कम से कम कॉलेज से, क्योंकि यूनिवर्सिटी की चीज़ से स्टार्ट करना ना इज वेरी लेट इन माय ओपिनियन। ठीक है, बट अगर हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कुछ चीज़ें जो वो लोग कर सकते हैं ना, उसमें से एक चीज़ जो मेरे जहन में है कि empower your student। ठीक है, अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करें, उनके जो स्किल्स हैं, उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको समझें। ठीक है, एंड उनकी जो रेजिलियंस है उसको भी एक्नॉलेज करें। ठीक है, और मेरे ख्याल से आई थिंक देयर शुड बी एन ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज हों, जिसपे स्टूडेंट्स जाके अपने स्ट्रेंथ को अपने स्किल्स को जज कर सकें। हर एक की स्ट्रेंथ स्किल डिफरेंट है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए लोग डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स बनाएं ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, जिसको स्टूडेंट्स आके एक्सेस कर सकें और अपने आप को खुद जज कर सकें कि हमारे लिए कौन सी चीज बेहतर है, वेयर डू वी स्टैंड। एंड दूसरी बात ये कि दे शुड प्रोवाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट रिसोर्सेज, जैसे काउंसलर्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, यूनिवर्सिटी में ये लोग होने चाहिए। यूजली नहीं होते, या अगर होते हैं तो वो डील नहीं कर पा रहे होते स्टूडेंट्स के साथ, वो प्रॉपर कैटर नहीं कर पा रहे होते उनकी प्रॉब्लम्स को। तो सिर्फ हायर नहीं करना, ये भी देखना है कि जिसको हायर कर रहे हैं क्या वो वाकई राइट पर्सन है फॉर द राइट जॉब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सही बंदे को हायर करें। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 100 बच्चा हो गया है जो मेंटल इलनेस का शिकार है, आपके लिए मुश्किल है उसको कैटर करना। लेकिन अगर अभी सिर्फ 10 बच्चे हैं जो इस इलनेस का शिकार हैं, आपके लिए उनको कैटर करना आसान है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप
प्रोएक्टिव हों अदर देन रिएक्टिव, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे स्ट्रेस हो रहा है स्टूडेंट को। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत कॉमन चीज़ है यूनिवर्सिटीज में भी, जॉब्स में भी, इवन हर जगह डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी इट हैपन्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की कि वो इन चीज़ों को ख़त्म कर सके ना, ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर और प्रेशर ना हो। ऑलरेडी जो मैंने बताया कि एकेडमिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, लेग पुलिंग, वो ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर रहे हैं। अब अगर टीचर्स भी करना शुरू कर दें, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दें, तो स्टूडेंट बेचारा कहाँ जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ पे यूनिवर्सिटी खुद काम करे। फिर मेरे ख्याल से सिंस यू गाइस आर इन सीएमसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहा होता है, मेरे ख्याल से एक वेलनेस कैंपेन होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, उसमें फैकल्टी भी हो, स्टूडेंट्स भी हो, ठीक है। और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो कि हाउ टू कोप अप विद देयर स्ट्रेस, और कैसे वो किसी अगले की हेल्प कर सके हैं स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। यू गाइस कैन एक्चुअली डू दैट। कोई कैंपेन करो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, और उसमें ट्रेनिंग सेशंस वगैरह हों प्रैक्टिकल, नॉट जस्ट सेमिनार हम लोग अटेंड करते हैं, दे डू हेल्प, बट एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा रही है ना मेंटल इलनेस के ऊपर, ब्लॉगर्स बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, बट क्या इसका उतना इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने जज करना है, राइट। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो है ना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग वो वाला काम कर सकते हो, कैंपेन रन करो और उसके ऊपर जो है ना एक काम करो, तो दैट कुड हेल्प, आई थिंक सो। Great, very much agreed. So, no, basically what you're saying is that we need an outlet to vent out our frustrations, basically, because in the end, हर कोई ना in the end किसी ना किसी तरीके से फ्रस्ट्रेट हुआ होता है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे फैमिली है, चाहे वो कोई जिस सोसाइटी में रह रहा है वहां से कोई इश्यू है, उससे उसकी अपनी कोई सोच है जो शायद इन रियलिटी एग्जिस्ट ना कर रही हो, लेकिन बंदे में करती है, ठीक है, विच इज एक्चुअली वेरी सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इट एग्जिस्ट टू अ वेरी हाई एक्सटेंट, सेल्फ इमेजिनेशन जिसे आप बोलते हैं। तो ये है। दूसरा मेरा ये कि सवाल है कि जजिंग स्किल्स जो आपके एक होते हैं, इट्स गुड दैट यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बट इसमें एक बड़ा इशू आ जाता है कि काफी लोग इनसिक्योर होते हैं अबाउट देमसेल्व्स, राइट, दे आर नॉट श्योर कि यार अगला तो मुझसे बेहतर है, इसकी इंग्लिश मुझसे बेहतर है, अ वेरी कॉमन dilemma, right, in our presentations, especially because we're both from management sciences department. बहुत अक्सर ये होता है, बच्चा लाइक होता है, काबिल होता है, सब कुछ होता है, सब पता होगा, लेकिन जब उसे खड़ा करते हैं बोलने के लिए, वो बोल नहीं पाता। क्यों? वो कहता है भाईजान यार मुझसे 10 लोग ज्यादा, ये 10 लोग बैठे हुए, ये मुझसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मैं कैसे बोलूंगा? एक बहुत बड़ा इनमें डायलेमा होता है। सो हाउ शुड वी काउंटर इसका, कैसे काउंटर कैसे करें इस प्रॉब्लम को बेसिकली? अच्छा, सेल्फ एस्टीम जो है ना वो लो होने के बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं, बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं, ठीक है। तो मैं वो नहीं रीजंस की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी कैसे कोप अप कर सकते हैं हम इनके साथ, ठीक है। मेरे पता क्या, आई थिंक कि यू आर योर ओन सेवियर, आप खुद ही अपने आप को बचा सकते हो। देयर इज नो प्रिंस चार्मिंग फॉर यू जो आपको आके सेव करेगा, आपने खुद अपने आप को सेव करना है। यू आर ऑन योर ओन। इफ यू आर लकी इनफ तो ठीक है, अपने सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल, विद पॉजिटिव पीपल, बट मेरे ख्याल से फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। खुद से काम करें अपने ऊपर, बजाय किसी और के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, ठीक है। फिर जो आपने बात की थी ना कि डोंट कंपेयर कर रहे होते हैं हम लोग, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, बिकॉज जो फिश है ना, ये हम अक्सर देख रहे होते हैं कि फिश जो है वो ट्री पे नहीं चढ़ सकती, वो पानी पे चलेगी सही तरीके से, ठीक है। तो हर किसी की स्किल्स, हर किसी की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। ज़्यादा अच्छी शायद मैं उर्दू बोल लूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई और पश्तो बोल रहा होगा, मुझे पश्तो नहीं आती लेकिन उसको अच्छी आती है। हर किसी डिफरेंट चीज़ के ऊपर अबूर हासिल है, ठीक है। हम सब डिफरेंट हैं, तो हम लोगों को अपने आप को लिवरेज देनी चाहिए। हम लोग, मैंने देखा है, वी आर वेरी अनकाइंड टू आवरसेल्व्स, अपने आप को मार्जिन नहीं दे रहे होते हैं।
वी शुड गिव मार्जिन टू आवरसेल्व्स। हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो रही होती हैं, ठीक है, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर इम्परफेक्ट, एंड हमें उन इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उनकी वजह से अपने आप को गिराना चाहिए। ये सब कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, आई नो दैट। अभी जो मैं बात कह रही हूँ ये सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन करने में मुश्किल है, बट नामुमकिन तो नहीं है ना। we all can work on it, and lastly ये कि we should take care of ourselves। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। दूसरी बात है कि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अगले का ख्याल भी कैसे रखेंगे। अगर हम सिर्फ करते ही जा रहे हैं, टाइम आएगा कि हमारी अपनी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी और हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्टली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, वही बात की थी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन बढ़ रहा है और डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, जो मुझे लगता है कि शायद हमारे पोल ऑफ फेल में फ़र्क है। हम जो बातें बोलते हैं हम उन पर एक्ट अपॉन नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी, मैं कहती हूँ कि खुदा प्लीज डोंट जज पीपल, बट मैं खुद जज कर रही होती हूँ लोगों को। तो बात यह है कि मैं जो बात बोल रही हूँ ना, मैं उस पर खुद अमल नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल से पहले हम लोगों को खुद अपने आप को चेंज करना है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, एक बंदे अपने डेथ बेड के ऊपर होते हैं, उसको वो स्टोरी बता रहे होते पूरी, ठीक है। वो कहते हैं कि आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, लेकिन फिर वो नहीं कर सका, तो मैंने कहा चलो लेट्स चेंज माय कंट्री, ठीक है। दैट कुडंट हैपन, तो ही से चलो लेट्स चेंज माय सिटी, वो भी नहीं हो सका। सिटी से बात सोसाइटी पे आई, सोसाइटी से बात घर पर आई, घर से बात उसने अपने ऊपर लेकर आई और कहते हैं मैंने अब रियलाइज किया है कि मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए था। मैं दुनिया को चेंज नहीं कर सकता, दुनिया हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं वो हमारे हाथ में है ना, हमारे बस में। तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। हमें कोई दूसरा बचाने के लिए नहीं आएगा, हमने खुद अपने ऊपर काम करना है। जब हम लोग अपने ऊपर काम कर लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से दुनिया बेहतर हो जाएगी। इफ आई वर्क ऑन माई सेल्फ, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, हादिया वर्क ऑन योर सेल्फ, 3 लोग सोसाइटी में से बेहतर हो रहे हैं ना। तो अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो फिर तो मेंटल इलनेस वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, क्योंकि हम में से कोई किसी को हर्ट नहीं कर रहा होगा, कोई किसी का अनकाइंड नहीं हो रहा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, बट जो बात कर रहे हो ना उस पर एक्ट भी करो, implement also. But पता है क्या, the last thing you said, I would disagree on that कि mental illness रहेगी। I've said this before कि दुनिया में बुराई अच्छाई दोनों होते हैं, it's a balance, इसीलिए उसे दुनिया कहते हैं। It's not perfect, never gonna be perfect, and हमारी ये जो जर्नी है towards something better, towards our goals, और one of our goals is better mental health, ठीक है। तो उसमें you have to first believe कि बुराई रहेगी, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो ये है कि हाँ हाँ, वही बात मैं आई एग्री विद यू कि जो लास्ट बात थी मेरी वो ये कि अगर कोई बहुत ही परफेक्ट दुनिया हो, जैसे एज से बिफोर के हम परफेक्ट नहीं है ना, दुनिया परफेक्ट है, इम्परफेक्शंस तो हैं ही। तो बुराई और अच्छाई तो लाजमी होगी ही होगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सी बुराई को सिर्फ कम कर सकते हैं, एग्जैक्टली। हम बढ़ाएं, हम कोशिश करें कि हमारे तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। वरना मुझे लगता है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं कि किसी को हर्ट ना करो, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे हम में से किसी ने किसी को हर्ट लाजमी किया होगा। यू नो, मैंने किसी को हर्ट किया होगा, तुराब ने, हादिया ने, हमने किसी ने किसी को जरूर हर्ट किया होगा किसी न किसी पॉइंट पे। तो इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज पे काम करें कि ठीक है किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई भी ना करें। व्हाट आई मीन। हाँ, यहाँ पे बात आती है मुकाफाते अमल की, कार्मा। आई बिलीव इट्स रियल कि whatever you मुकाफाते अमल सिर्फ यहाँ पे नहीं आता कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। मुकाफाते अमल आई बिलीव कि यहाँ पे भी आता है कि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स में भेजोगे तो वो आपके पास कहीं ना कहीं से वापस आएंगी। द थिंग यू सेड कि किसी के साथ अच्छा करो तो वो एक ripple effect होगा, you're gonna start somewhere, try to make change into the world।
तो बिल्कुल ठीक बात की। एंड इसके साथ नूर मैं ये भी पूछूंगा कि हर इंसान का ना एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ऐसा ही है? लाइक कोई ना कोई ऐसी इंस्टेंस आती है कि वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट में होता है, ही इज ऑन द पीक ऑफ self harm, he's on the peak of substance abuse, they are on the peak of like anything they can, basically they try to find escapes from their own problem, right? But जब इतना प्रॉब्लम हो जाए तो बंदे को जब शुड दे सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल जब इतना स्ट्रेस हो? क्योंकि हमारे यहाँ लोग बड़े शर्म खाते हैं कि जनाब वेरी इट्स वेरी सैड, लेकिन अगर आप यहाँ किसी जाओ ना साइकोलॉजिस्ट के पास तो बड़े अक्सर सुनने को मतलब बंदा पागल हो गया। अच्छा, एज आई सेड अर्लियर टू रैप के इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि डिप्रेशन इज़ वेरी रियल। अच्छा, आपने जो बात की ना कि लोग शर्म खाते हैं, ये जो बात थी ना, ये जो हमारे बड़े थे ना, वो नहीं मानते मेंटल इलनेस को, बट हमारी जनरेशन जो है वो इस चीज़ को मानती है कि हाँ ठीक है, मेंटल इलनेस है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आई डोंट नो ऑफेंड ना हो जाए साइकोलॉजिस्ट वगैरह हमारे, बट मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, नॉट माइन, मेरी एक फ्रेंड का। शी वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड उसका काम क्या है, साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है कि वो अगले की बात सुने। जो भी बंदा उस चीज से गुजर रहा है ना, वो चाहता है या चाहती है कि उसको सुना जाए, राइट? हो क्या रहा है कि उन लोगों को नींद की गोलियां दे दी जाती हैं एंड चीजें और खराब हो रही होती हैं, ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस कॉलेज को पास जा रहे हो ना, वो भी एक सही इंसान हो, यू नो, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल्स जो यहाँ पे हैं वो सुनते नहीं है, वो आपको दवाई पकड़ा देते हैं। दवाई तो आप ले सकते हो, आप चाहते हो आपको कुछ सुने, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सही बंदे के पास जाके उससे हेल्प सीख कर रहे हो। दूसरा मैं कहती हूँ हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जनरेशन के ऊपर, कि हम हमारे आगे जनरेशन के लिए चीजें आसान करें इन अ वे कि अगर हमें नजर आता है कि हाँ वो मेंटली डिस्टर्ब है या कुछ है, तो हम खुद उसको लेके जाएं किसी प्रोफेशनल के पास उसकी हेल्प करने के लिए। हम जो हमारे बड़े कह रहे हैं, आई एम सॉरी टू से कि वो जो नहीं मानते कि जी डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है, हम वैसे ना हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली काफी हमारे सिस्टम्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बहुत प्रॉब्लम है कि मेंटल हेल्थ इज स्टिल नॉट एड्रेस्ड एज इट शुड बी। आपका बच्चा 96-97% लेता है एफएससी प्री मेडिकल में, एडमिशन नहीं होता, बच्चा सुसाइड कर लेता है क्योंकि माँ बाप की तरफ से प्रेशर होता है। इन दी एंड इंस्टीट्यूट्स कहती हैं इट्स नॉट आवर हेडेक, हमारा तो मेरिट ये बच्चा आए। कितने बच्चे आ सकते हैं इस मेरिट में, आप पहले मुझे ये बताएं। और आपका सिस्टम इतना फ्लॉड है, आपका एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लॉड है कि एक काबिल बंदा 60% में बैठा है और एक रटे वाला 97 में बैठा है। नो डाउट उसने भी अपने तौर पे मेहनत की होगी, हर बच्चा डिफरेंट होता है, ये बात भी समझने की जरूरत है कि हर कोई सेम नहीं होता। एक से रट्टा लग रहा है, एक से नहीं लग रहा, एक क्या नाम है टेक्निकल अच्छा है, एक एकेडमिक परस्पेक्टिव से अच्छा है। कोई बंदा फजूल नहीं होता। ये जो नालायक एक टर्म है ना, इट्स अ वेरी डिग्रेडिंग टर्म इन आवर एजुकेशन सिस्टम। किसी भी टीचर को, किसी भी माँ बाप को, किसी भी बंदे को नालायक बोलना, मैं कहता हूँ इट शुड बी द बिगेस्ट अब्यूज एवर टू बी यूज। एंड इसे मना करना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए कि आपके एजुकेशन क्लास 1 से लेके पीएचडी तक ट्रेनिंग कीजिए आपके टीचर्स को कि द वर्ड नालायक शुड बी बैंड। आप बोलते हो किसी को नालायक, दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। ऐसे होता है। बिल्कुल, एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि हमारे करिकुलम में ना सब्जेक्ट होना चाहिए मेंटल हेल्थ के ऊपर, होना चाहिए, ठीक है? हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ रहे होते हैं, जो चीज हम लोगों ने आगे जाके फेस करनी है हम वो ही नहीं पढ़ रहे होते। मेंटल हेल्थ का सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ साइकोलॉजी वालों के लिए नहीं, हर एक के लिए, क्योंकि हर कोई चीज से गुजर रहा होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कूल्स नहीं तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कम से कम अपने करिकुलम में मेंटल हेल्थ का सब्जेक्ट इंक्लूड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ थ्योरेटिकल ना पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके समझा रहे हो। साइकोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं। थ्योरी ठीक है पढ़ाओ,
नॉलेज के लिए, समझने के लिए ना, और उसको उस चीज को नॉलेज भी ठीक है समझ आ रही है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं बताओगे हम कैसे समझेंगे उस चीज को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाए, लेकिन साथ साथ इसकी ट्रेनिंग भी की जाए। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से हमें बता दो डेफिनेशन क्या मेंटल हेल्थ की, वो हम लोग गूगल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन चाहिए कि हम कैसे डील करें जो हमारी जिंदगी में चीजें चल रही हैं, जो मसले हम आगे जाके फेस करेंगे, उनको डील कैसे करना है। एज ए मेंशन बिफोर कि एक कैंपेन होनी चाहिए मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों इकट्ठे, बिकॉज टीचर्स भी अक्सर बहुत स्ट्रेस दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत ज्यादा। मतलब बच्चों का तो ले ही रहे हैं, अपना पीरियड तो स्ट्रेस ले ही ले रहे हैं, टीचर्स की तरफ से इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि, और वो स्ट्रेस तो ऐसा है कि आपको नहीं पता कि आपका ग्रेड जो है, परफॉर्म अच्छा कर भी रहे हो फिर भी नहीं पता ग्रेड क्या आएगा, बिकॉज यू डोंट नो कि कोई पर्सनल ग्रेड निकालेगा या नहीं निकालेगा, एंड दैट हैपेंस, दैट टोटली हैपेंस। डिस्क्रिमिनेशन एज ए मेंशन्ड अर्लियर ये होती है। तो उसमें भी यही होता है कि काफी अच्छा बच्चा जो उसका ग्रेड पीछे चला जाता है, और जो बच्चा क्योंकि टीचर का फेवरेट है तो उसको ग्रेड्स मिल जाते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। आई मतलब मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मुझे ये चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती थी कि ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि इफ यू आर योर टीचर्स फेवरेट तो यू विल गेट द ग्रेड। अगर आप पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको ग्रेड मिल जाएगा। तो this I think we need to work on. We really need to work on it. और हमारे थर्ड एपिसोड में इस बारे में बात भी हुई थी. We addressed quite a lot of flaws in our education system, लेकिन यहाँ पे इस एपिसोड में it was more specific towards our education system affecting mental health of students. तो क्या चीज़ बेटर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और ये डिस्कशन और भी बहुत हो सकती है, ब्रांच आउट हो सकती है और इन डेप्थ इस बारे में बात की जा सकती है. बट इम्प्लीमेंटेशन, अगेन आई सेकंड यू ऑन दैट, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि नहीं होती है. So I hope someone takes note and eventually we work on it as well. But we can start somewhere, and we're starting somewhere. And I want to talk about this more and more, about mental health as a student, as a person, as anything. आदिया, दिस इज द एग्जांपल, हम जो भी बात कर रहे हैं ना, ये एग्जांपल है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जो कैपिटल मीडिया करने लिए, यू नो, यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी सोसाइटी है जिसने ये स्टार्ट किया और इस पर हम बात कर रहे हैं. तो मैंने जो पहले बात स्टार्ट की थी कि सर उस्मान का एक विजन है, वो विजन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे. और मैं तुम लोगों को क्रिसमस में कह रही हूँ बिकॉज आई नो यू गाइज, यू नो, यू गाइज आर वेरी टैलेंटेड एंड आई नो कि आप लोग जो ना इस पे काम करोगे. मतलब मैं चाह रही हूँ कि वाकई में हमारी यूनिवर्सिटी में कैंपेन हो मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स नहीं खाली टीचर्स भी इन्वॉल्व हो, दोनों इन्वॉल्व हों, दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें. जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे सोल्यूशन कैसे देंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोनों का इंटरेक्शन हो, यू नो. खाली सेमिनार से काम नहीं चलने वाला, एक जरूरी है इंटरेक्शन होना. सेमिनार्स डू हेल्प बट इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे ख्याल से ये चीजें कर सकता है. एंड माशाल्लाह इतनी अच्छी टीम है, तो यू गाइस कैन पुल इट ऑफ वेरी नाइसली. Inshallah. Learned a lot from you actually, और as a friend and as a management head काफ़ी कुछ सीखा. The way you dealt with a lot of your problems, माशाल्लाह से you did so well. And माशाल्लाह अल्लाह आगे भी हिम्मत दे और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा करे in your future life. और thank you so much for coming on to the show. और thank you Turab for having the time to co-host with me. We're gonna end the discussion here and inshallah pray कि implementation हो. So thank you for having me, Hadia and Turab, and thank you to Sir Usman for giving me an opportunity to speak about it. Thank you so much. Thank you.
You're welcome. We're honored to have you. Thank you so much, guys. Thank you for watching, and don't forget to tune into the same Facebook page of Voice of Capital to watch the next show on Sunday. That is the lighter side. It's a bit about entertainment and stuff. So, thank you, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.